Okay, so first we will see what all trigonometric identities we have with us and which we are going to use explicitly throughout. Talking about any kind of proof or any kind of workings we will be doing, that will be dependent on the basic trigonometric identities here. So I will show you the three identities to remember. One is sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Number 2, tan squared theta plus 1 is equal to sec squared theta. And the last one, cot squared plus 1 is cosec squared theta. And what is this theta that I am talking about? This is just a random angle in a right angled triangle. So I am considering a right angle triangle. Let's say this is the angle theta that I have taken. So what we will do, we will just prove all these three trigonometric identities. So the first trigonometric identity we are going to prove. So proof of the first trigonometric identity, that is sine squared when added with cos squared becomes 1. So let us say we have this triangle, है ना, ये ट्राइंगल है, ये थीटा है. तो यहाँ से चलो मैं ये नेम कर दिया एक्स वाई और ये हो गया z. सो हियर व्हाट विल बी साइन थीटा. थीटा जस्ट ऑब्जर्व, इसके अपोजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. सो साइन थीटा विल बी एक्स बाय हाइपोटेन्यूज z. कॉस थीटा क्या होगा, बेस, एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस है. सो y बाय z. So what we have to prove, that their squares when added comes out to be 1. तो दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो. सो एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को मैं कंबाइन कर दिया. अब ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज z square, that is hypotenuse square using Pythagoras theorem. और z square by z square क्या हो गया, 1. तो हमें क्या पता चलता है यहाँ से, that we have proved sin squared theta and cos squared theta and that comes out to be 1. So let us look at the second identity. What is that? Tan squared theta plus 1 is equal to sec squared theta. So we have to prove this identity. So to prove this, what we will do, we will again consider a triangle because we have to be sure what is this angle theta. So if this is angle theta, let us just name all the parts of this triangle, all the sides x, y and z. ये z हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया. तो यहाँ से tan theta क्या होगा, tan theta will be x by y. So you have to square this and add it with 1. So square this and add it with 1. तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 1. तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, है ना. ऐड करने पे हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर. अब फिर से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो रहा है, सेम चीज जेड स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर. अब ध्यान से देखो तो इस जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड बाय वाई होल स्क्वायर. एंड जेड बाय वाई क्या होता है, देखो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, cos थीटा, दैट इज sec सेक, थीटा, राइट. ये हो जाएगा सेक स्क्वायर्ड थीटा. वी विल प्रूव द लास्ट आइडेंटिटी, दैट इज cot squared theta plus 1 is equal to cosec squared theta. So let us look at how to prove. So of course we will be taking right angle triangle only, and let's say this is angle theta. So let's say this is x, this is y and this is z. तो cot theta यहाँ से क्या होगा, y by x, बेस बाय परपेंडिकुलर. cosec theta क्या होगा, z by x, साइन का उल्टा.
तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 वी विल जस्ट डू y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो दैट इज जेड बाय एक्स। और ध्यान से देखो तो जेड बाय एक्स क्या है cosec theta, so it will be cosec squared theta, and by this we even prove this third identity. Okay, so first we will see a most basic question. You have to express the ratio cos A, tan A and sec A in terms of sin A. So if you look here carefully, क्या कह रहा है cos A को sin A के टर्म्स में लिखो, tan A को भी sin A के टर्म्स में लिखो, sec A को भी sin A के टर्म्स में लिखो। तो पहले cos और sin में पहला चीज, लेट अस फर्स्ट सी द रिलेशन ऑफ cos इन टर्म्स ऑफ sin। दोनों में रिलेशन क्या है cos और sin में? आइडेंटिटी याद आता है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a दैट इज 1। तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a क्या हो जाएगा रूट लेंगे राइट, अंडर रूट, so that will be 1 minus sin square a and plus minus, ये याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल थिंग। अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो हम अगर रूट करेंगे ना तो x इक्वल टू 5 नहीं लिखेंगे, वी विल राइट प्लस माइनस 5, बिकॉज बोथ दिस 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 5 का भी स्क्वायर होता है 25, तो जब रूट लेंगे तो प्लस और माइनस 5 दोनों आना चाहिए। So this becomes the relation between cos and sin. So now we have to convert this tan A in terms of sin A. तो tan और किसके बीच में रिलेशन है? sec के बीच में रिलेशन है राइट, tan स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। तो tan A क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस 1। अब देखो sec स्क्वायर A क्या है cos स्क्वायर है राइट, तो tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर A माइनस 1, और cos स्क्वायर A तो है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस 1। हाँ सर, sec square A, now you have to just write this tan square A in terms of tan A in terms of sin A, तो tan A क्या हो जाएगा दूसरे साइड ले लो, प्लस माइनस 1 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस 1। tan A को लिखना है sin A में, तो पहले इसका क्या यूज कर, या तो ये यूज कर दें आइडेंटिटी, या तो दूसरा क्या है tan A का बेसिक एक्सप्रेशन sin A बाय cos A, साइन में ही रहना है ना, तो चलो ये छोड़ देंगे, इस cos A के जगह ये लिख देंगे। सो आवर आंसर इज डन, sin A बाय प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। So our answer also is done for tan A। ऐसे ही sec A को भी हम लिख सकते हैं, sec A क्या होता है 1 बाय cos A, जो माइंड में आया वही यूज करेंगे, आइडेंटिटी आया आइडेंटिटी यूज कर देंगे। sec A इज 1 बाय cos A तो निकल गया है ना sin A के टर्म्स में, तो ये हो गया 1 बाय प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, एंड ये हो गया हमारा फाइनल answer. So let us do another question. So here we have to prove that sec A into 1 minus sin A times sec A plus tan A is equal to 1. So this we have to prove. So left hand side if we observe, it is sec A times 1 minus sin A into sec A plus tan A। तो सबको ना बेसिक एक्सप्रेशन में कर देते हैं, sec A क्या हो जाएगा 1 बाय cos A, साइन साइन में ही रहने देते हैं, यहाँ पे ये sec A हो जाएगा cos A, ये हो जाएगा sin A बाय cos A। हाँ सर, मैंने बस तो अब वही देखो किया है, किसको बट फिर सिंप्लीफाई मैंने कर इसको सकते हैं, एकदम वैल्यू कर दिया उसका। ये राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं,
तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, right? Denominators are same. I just combined the numerators. हाँ मैं Now भी if वही you look किया। here, this 1 minus sin a into 1 plus sin a, ये किस फॉर्म में आ गया देखो, a सर माइनस ए बी ए इंटू माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी, है ना? तो वो क्या होता है, ए सर ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, व्हाट विल इट बी, कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वी हैव द आइडेंटिटी विथ अस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है देखो, दिस इज 1। तो साइन स्क्वायर ए राइट साइड में गया तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, so this should be cos square a and divided by cos square a. So this gets cut and we get this coming out to be 1, which is our right hand side, and hence proved.